انداز ٹی وی، سوچ آپ کی انداز ہم السلام علیکم ناظرین، انداز رمضان اطمینان شیخ، کیا خوبصورت گھڑیاں ہیں رمضان کی، سبحان اللہ۔ اور آج رحمت کے عشرے کا آخری دن ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ دل میں اتنی ملامت ہے، اور یقین مانیے دل جو ہے نا بہت افسردہ ہے کہ رحمت کا عشرہ ہم سے جو ہے جدا ہو رہا ہے، اور آج ہماری اس کی آخری افطاری ہوگی۔ تو آخری افطاری میں بھی میں سب کو یہ کہوں گی کہ جو چند لمحے، چند گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے رحمت مانگو، مجھ سے جو چاہے مانگو، اور ایسے مانگو جیسے کہ اپنے والدین سے مانگتے ہو۔ اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا جان کی دولت دے دوں۔ تو جب یہ جو ہماری آخری گھڑیاں ہیں نا رحمت کے عشرے کی، اور جو ہر روز اللہ 60,000 مسلم کو پروانہ دے رہا ہوتا ہے مغفرت کا، تو کیا کہنے اس بات کے کہ اللہ آج اس مغفرت میں ہمارا نام بھی شامل کر لے، آج اس مغفرت میں ہماری یہ پوری جو ٹرانسمیشن کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا نام بھی شامل کر لینا۔ اور آج ہمارے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ ہم پروگرامس بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم حالت جنگ میں آ گئے ہیں، پاک افغان لڑائی چل رہی ہے، دونوں طرف ہمارے بھائی ہیں، ادھر بھی مسلم ہیں ادھر بھی مسلم ہیں۔ ادھر ہمارے ساتھ ننے ننے اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کے طلباء ہیں، جو کہ یقیناً یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم ان سے پتہ ہے ہم نے کیوں یہ ارینجمنٹ کیا، کوئز کا کیوں سلسلہ رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا، ہمارے جو 21ویں صدی کے جین الفا کے جو بچے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے دین کے بارے میں، کیا ان کو پتہ ہے اسلام کے بارے میں، کیا ان کو پتہ ہے روزے کے بارے میں؟ تو یہ اس سلسلے، یہ اس گھڑی جو ہے اس کے ساتھ اس کو اس لیے کنیکٹ کیا گیا ہے۔ تو باقاعدہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں، ہم اپنے مہمان کا جو ہے تعارف کرواتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان رائے حق پارٹی کے انفارمیشن مرکزی سیکرٹری اشرف میمن صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اسماعیل طاہر جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیں گے۔ اسمارٹ اسکول جے بلاک کیمپس کے بچے ہمارے ساتھ آج ہیں، اور آج جو بچے یہ بچے ہیں، آج ہم دیکھیں گے کہ اسمارٹ اسکول جو ہے ان کے جو بچے ہیں ان میں کتنی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے پاس جو ہیں اسٹینڈ موڈ اسکول کے بچے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ لیکن کہیں گے کہ یہ بھائی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، ہاں مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں بچے چاہے جو ہے یہ بھی 6 اسٹینڈرڈ کے بچے ہمارے پاس ہیں، یہ ہمارے پاس پرائمری کے بچے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پیرنٹس کو یہ بتانا کہ پیرنٹس کے اندر کتنی اپنے بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو ڈیولپ کرنے کی عادت ہے۔ وہ پیرنٹس، وہ لوگ جو ان بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور اتنی جو ہے اس کا حصہ بنے ٹرانسمیشن کا، ان سب کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ جو ہیں اللہ رب العزت کے نام سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کرتے ہوئے ہم سب کی جان ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ وہ ہوسٹ ہے، میں ان کا انٹروڈکشن کروں گی۔ یہ بھی اسمارٹ اسکول کی ہیں، اور رمشا جو کہ ان کو کوئز کمپٹیشن کے کوشچنس کریں گے، کیونکہ میرے ساتھ گیسٹ ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کرنی ہے۔ اشرف میمن صاحب، سب سے پہلے آپ کو ویلکم بہت بہت کہ آپ جو ہے اپنا ٹائم نکال کر ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کریم ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہماری بہت جو معتبر بڑی ہستیاں ان کا وصال بھی ہوا ہے، جس میں سے ایک معتبر ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ امت کی ماں بھی کہلائی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پہلے تو ان کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے اتنی کس طرح سے حضرت سے جب شادی کی تھی اس وقت حضور اکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को तन्हा समझते थे, उनके आगे पीछे सारे दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने किस तरह उन्हें सहारा दिया, एक बीवी बनकर, एक दोस्त बनकर और 7 बिजनेसमैन बनकर। तो थोड़ा उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की वो प्यारी बीवी थी कि जब तक हज़रत खदीजा जिंदा थी और तो उस वक्त तक अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ऐलान से पहले ही है वो उनके साथ उनका माल तिजारत लेके जाया करते थे और यकीनन वो जब माल तिजारत लेके जाया करते थे और जब उस माल तिजारत में एक अच्छा मुनाफा होता था और तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके जो है वो शराफत से, उनकी दयानतदारी से, उनकी जो है वो ईमानदारी से, उनकी पाकीज़गी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होके लेकिन उन्होंने जो है वो एक ऐसे यतीम लड़के के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे तो जिनके पास कोई माल नहीं था तो वो उनके लिए निकाह का पैगाम भेजा। तो ये एक उनकी शराफत की बहुत बड़ी दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब और यही दलील हज़रत खदीजा के लिए भी है। क्यों कि वो खुद इतनी जो है वो पाकीज़ा और इतनी जो है वो मतलब साफ और ये कि यानी वो इतनी पाकीज़ा थी कि उन्होंने अपने लिए जिसको चुना या जिसके लिए पैगाम जो है वो निकाह का पैगाम भेजा तो वो भी एक पाकीज़ा शख्स के लिए भेजा। जैसा अल्लाह जल्ल शानो मतलब उनके लिए भेजा, उनको तो नहीं पता था, वही भी नहीं नाज़िल हुई थी। तो निकाह के बाद जो है वो जिस तरह हज़रत खदीजा ने अपना पूरा माल जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम पर लुटा दिया, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे वो सदका करते जाती थी, ठीक है ना। और पूरा माल आखिर में एक वक्त आया कि पूरा का पूरा माल जिनका माल तिजारत कई लोग दूसरे जो है वो शहरों में और दूसरी मुल्कों में लेके जाया करते थे, उनका माल उन्होंने सारा का सारा उन्होंने अपना माल जो है वो सदका कर दिया। और ये वो खातून थी जो कि सबसे पहले ऐलान नबूवत के बाद जो सबसे पहले जो खातून नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई वो हज़रत खदीजा थी। क्यों कि उन्होंने उनकी शराफत देखी, उनकी दयानतदारी देखी, उनकी अमानत देखी, उनकी सदाकत देखी। हर चीज़ देखने के बाद वो इस चीज़ से मुतासिर थी और यकीनन वो मुतासिर थी तो जब वो उन्होंने सारी चीज़ें महसूस की कि वाक़ईतन ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर नबूवत आ सकती है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। अरे जब नबूवत आई तो उस वक्त संभाला भी खदीजा ने, मतलब पूरे पसीने में शराबूर और खौफज़दा थे। बिल्कुल और जो है वो जिस तरह संभाला कि उन्होंने कहा कि जो है वो आपको जो है अल्लाह जल्ल शानो आपको ज़ाया नहीं फरमाएंगे, आप चूंकि अपने लिए नहीं करते आप दूसरों के लिए करते हैं तो यकीनन अल्लाह जल्ल शानो आपको ज़ाया नहीं फरमाएंगे। और अल्लाह जल्ल शानो ने ज़ाया नहीं फरमाया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी पूरी ज़िंदगी हज़रत खदीजा के साथ ऐसी गुजारी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो है उनके विसाल के बाद ही नबी अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरा निकाह फरमाया। तो आज की इस महफिल में हम यकीनन उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और जो है वो जितनी भी अज़वाज मुताहरात हैं वो हमारी माएँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया हम अपनी माँ को जो है वो आज खराज तहसीन पेश करते हैं। हज़रत फातिमा का भी तो रमज़ान में था ना, पिछले रोज़े जी मतलब ये उनकी वालिदा माजिदा खदीजा और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला जो लख्ते जिगर हजूर की आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, दिल का चैन। और जब उनकी शादी हुई तो उनसे वो बीच में एक हुजरा था और वो हुजरा जिनका था ना तो हजूर अकरम से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हजूर ने उनसे कहा कि भाई मेरी बेटी ये अगर हुजरा हमें दे दो तो वो फिर हुजरा ज़ाहिर है हजूर को कौन मना कर सकता था। बहरहाल मतलब बापों को बेटियों से ये मोहब्बत दिखाई, साथ में उनका ये दिखाया कि कितनी इज्जत कैसे करनी है। और इसके साथ साथ मतलब देखिए उनकी वालिदा माजिदा रमज़ान मुबारक के इंसान हज़रत फातिमा ज़ोहरा जन्नत की सरदार खातून की सरदार जो है
وہ بھی رمضان المبارک میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس رمضان المبارک میں گئے. تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور جو اہل بیت کے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ان پر ہم تو ان کی خاک کے برابر ہی ہیں. اچھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں، ہم ان کا وصال مناتے ہیں، تو کیا تمام اہل مذہبی فرقے ہیں وہ تب اس پہ متفق ہیں؟ دیکھیں جی، کوئی اگر متفق نہ بھی ہو، اگر تو متفق ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی متفق نہ ہو، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر ان کی شان میں بھی فرق نہیں آئے گا اور ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں جو ہے وہ اپنا کام، اپنا ایک جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، اور وہ جاری رکھیں گے. اسی طرح دوسری بھی جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی بھی ہیں ازواج مطہرات، ہم سب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم جو ہے وہ کسی ایک کی بھی شان میں ہم جو ہے وہ کمی کریں تو شاید ہمارے ایمان کا مسئلہ بنے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ سنت ہے، اور اس پر جو کوئی عمل نہیں کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں سید ہوں، اور وہ ان کی نہیں مان رہے، تو پھر تو میرے خیال میں تھوڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. سمجھ سکتے ہیں میں کن کے بارے میں کہہ رہی ہوں، لیکن تھوڑا اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اہل بیت کو ماننا، اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کو ماننا، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے، ہمارا جو مسلم کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ہم رمضان پاکستان کے اندر کیسے، اگر کمپیریزن کرتی ہوں میں ادر مسلم کنٹریز کے ساتھ، اگر میں سعودیہ سے بھی کرتی ہوں تو تراویح کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر تراویح اتنی بڑی جا رہی ہیں، اور سعودیہ میں تراویح چاہے آپ جو بھی وجہ بنا لیں، ٹائم نہیں ہے یا طواف کے لیے ٹائم نہیں ملتا یا جو بھی ہے، اس پہ تو روشنی ڈالیں. دیکھیں جی، پاکستان میں رمضان المبارک بہت ہی زیادہ احترام سے منایا جاتا ہے. یہ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک اسلامی ملک دیا ہے، ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے. ہمارے آب و اجداد کی قربانی کی بدولت آج ہم اس ملک میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس ملک میں بیٹھ کے اس رمضان المبارک کے حوالے سے ہم ہر قسم کی بات کریں، اور ہم آزادانہ روزے رکھتے ہیں، آزادانہ نماز پڑھتے ہیں، آزادانہ ہم اپنی عبادات کو کرتے ہیں. جب ہمارے آب و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، اور جب دو قومی نظریہ اور جب یہ پاکستان وجود میں آنے کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ ہم نے جو ہے وہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بچوں کو بھی اس بات کی یقیناً جو ہے وہ نالج ہوگی بھی، پڑھتے بھی ہوں گے، تو کہ ہمارا جو ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے آبا و اجداد نے اس لیے بنایا کہ ہم جو ہے وہ اپنی عبادات کو، اپنے مذہب کو، اپنی تمام ان چیزوں کو ایک آزادی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کو انجام دے سکیں، ایک آزادی کے ساتھ ہم اپنی عبادات کریں. شکر اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ماحول دیکھتے ہیں کہ جی سحری کا ایک ماحول ہے، ایک جو ہے وہ سحری کے وقت ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. اور سحری میں آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ مساجد کے سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے ممالک میں آپ نے جس طرح بات کی کہ جو ہے وہ دوسرے ممالک میں، ذرا مغربی ممالک کی طرف بھی جانا چاہوں گا کہ مغربی ممالک میں دیکھ لیں آپ، یہ ہمارے پڑوسی ملک دوست ممالک ہیں ہمارے، لیکن جو ہے وہ چونکہ وہ مسلم نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے یہاں اب وہاں جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، جو ہمارے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ وہاں پہ وہ کیا فیل کرتے ہیں. پاکستان میں ہم یہاں پہ جو ہے وہ کراچی میں بیٹھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جی سحری میں جو ہے وہ سائرن وہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ آپ کو اعلان کر کے بتا رہے ہوتے ہیں جی 10 منٹ باقی رہ گئے، 15 منٹ باقی رہ گئے، 5 منٹ باقی رہ گئے. اسی طرح افطار کے وقت لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ انہوں نے اسٹال لگائے ہوتے ہیں افطاری کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں. میں انجوز کی طرف بھی آؤں گا، میں اس پہ انشاءاللہ ایک بات کروں گا. تو جس طرح یہاں پہ اسٹالز لگائے جاتے ہیں اور جس طرح جو ہے وہ لوگوں کو افطار بھی کرایا جاتا ہے، ہم خود افطار کرا رہے ہیں. میرا جو ہے وہ حلقہ انتخاب ہے NA 235، اس میں جو ہے وہ AWT کے نام سے ہم جو ہے وہ وہاں پہ افطار کرا رہے ہیں. روزانہ ہمارا جو افطار وہاں پہ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ ایک وہاں پہ سینکڑوں لوگ روزانہ
افطار کر رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ ہماری پارٹی کے نام سے کیا تھا, پاکستان راحت پارٹی کے نام سے. چونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پوری ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, تو ہم نے یہ ساری مینجمنٹ جو ہے وہ AWT کے حوالے کی ہے, اور جو ہے وہ AWT بہت اچھا وہاں پہ کام کر رہی ہے. میں یہاں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں, یہاں پر ہماری جو کوئز کمپٹیشن سے بچے آئے ہوئے ہیں, تو جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ AWT کی طرف سے ہی ہیں. گفٹ ہیمپرز وہ ان کے ساتھ جائیں گے, اور AWT واقعی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اشرف احمد صاحب بتا رہے ہیں, مجھے کمپیریزن بتا رہے ہیں آپ. دیکھیں, میں کمپیریزن کی طرف یہ آ رہا تھا کہ جس طرح میں نے ایک ماحول بتایا کہ یہاں پہ ایک ماحول ہے کراچی میں, پاکستان کے اندر ایک ماحول ہے. اب یہ ماحول آپ کو امریکہ میں نہیں مل سکتا, یہ ماحول آپ کو چائنا میں نہیں مل سکتا, یہ ماحول جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ جرمنی میں نہیں مل سکتا, یہ ماحول آپ کو اسپین میں نہیں مل سکتا, یہ ماحول آپ کو سعودی عرب میں ملے گا, آپ کو دوسرے اور مسلم ممالک میں ملے گا, آپ کو بنگلہ دیش میں مل جائے گا, آپ کو ہندوستان میں یہ ماحول نہیں ملے گا. چونکہ ہم یہ ماحول چاہتے تھے, اسی ماحول کے لیے تو ہمارے آبا اجداد نے قربانیاں دی اور جو ہے یہ پاکستان بنا. تو یہ اب جو لوگ بہت شوق سے جاتے ہیں, میں ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ بیرون ممالک میں رہتے ہیں, میرے خود بڑے بھائی جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے کینیڈا میں ہیں, تو میری ان سے بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کئی سفر کر کے جاتے ہیں, اور یہ تراویح کے لیے ان کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے. جمعے کی نماز کے لیے ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ جمعہ ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم الگ ہے, دوسرا ٹائم الگ ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہے وہ اب اگر چائنا میں چلے جائیں, تو اگر لوگ جو کاروباری لوگ ہیں اور اگر وہاں پہ جاتے ہیں اپنا امپورٹ کے لیے, کچھ مال خریدنے کے لیے, اپنی تجارت کے لیے, تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں رمضان کا پتہ ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس. یہ جو ملک ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں اس نعمت کی جو ہے وہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور بچے یقیناً پڑھ کے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ کیوں جا رہے ہوتے ہیں کہ ملک چھوڑنا جو ہے نا, اپنی کنٹری کو چھوڑنا, یہ بہت ہی غلط بات ہے. بھائی نیو جنریشن جو ہے, جو یہاں پہ آزادی ہے نا, ملک کی خاطر وہ جو کہتے ہیں نا گھر تو آخر اپنا ہے, ٹھیک ہے نا. جتنے دکھ آپ سہ لیں, یہ ہمارا اپنا گھر ہے, ہمارا پاکستان ہے, اس کی سلامتی کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں, ہمیں لڑنا بھی ہے, ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, ملک جو ہے نا ہم نے سنبھال کے رکھنا. قائد اعظم نے کہا تھا, بچوں کے لیے کہا تھا, اسپیشلی جو ہے ہمارے ننے والے بچوں کے لیے کہا تھا, اسٹوڈنٹس کے لیے کہا تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. آج ہم بڑے کڑے وقت سے گزر رہے ہیں, اور کراچی کو بھی تھریٹ آ چکا ہے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے. چلتے ہیں بریک کی طرف. اور تار کی گھڑیاں, رحمت کے عشرے کا آخری دن, رحمت کا عشرہ ہم سے جا رہا ہے. اے مومنو, یہ عشرہ ہم سے چلا جائے گا, کچھ مانگ لو رب العزت سے. اور وہ رب تو بڑا مہربان ہے, وہ تو کہتے ہیں میں عطا کرنے والا ہوں, کوئی تو آئے مجھ سے مانگے تو صحیح. 70 دفعہ توبہ کرتے ہو, 70 دفعہ توڑتے ہو, پھر بھی آ جاؤ, میں پھر بھی تمہیں دوں گا. تو اس کی رحمت تو بڑی بے حساب ہے. ہمارا کوئز کمپٹیشن آج سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ فرسٹ آف آل جو ہے اسمارٹ اسکول کی بچیاں ہیں, عائزہ, فیصل, ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر, ہمارا کمپٹیشن کے اندر فرسٹ راؤنڈ جو ہوگا وہ کوشچنس ہوں گے, ٹھیک ہے. 2 کوشچنس ہوں گے سب سے, اور پھر ہمارا ٹیم بی ہے, اس میں بھی ہمیں 2 کوشچنس کریں گے اس طرح سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے پورے کوشچنس کے آنسر دیتے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد اسی طرح سے ہمارا جو ہے پھر سیگمنٹ 2 آئے گا, پھر راؤنڈ 3 آئے گا. اچھا, تینوں راؤنڈ میں سے جس نے جو ہے نا پورے کوشچنس دیے نا, پھر وہ ہمارا آج کا ونر ہوگا, ٹھیک ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, چلتے ہیں ہم پروگرام کی طرف. جی رمشا, اب آپ تیار ہو جائیں, اب آپ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. یہ آپ کوشچن کا آغاز کریں. پہلے آپ عائزہ فیصل سے کوشچنس کریں گی, 2 کوشچنس کریں گی. تو سب سے پہلا کوشچن ہے, سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ جانوروں کا ذکر ہے سورت میں, بیل کی کہانی کا, کیونکہ یہ سب سے بڑی سورت ہے, یا پھر کیونکہ یہ مدنی ہے. مطلب 4 آپشن ہے نا کہ سورہ بقرہ کے اندر سوچیں, مطلب ٹائم اتنا لمیٹڈ ہے کہ بقرہ کے اندر کس چیز کا ہے, کہ اس میں بیل کا ذکر ہے, اس میں ریپیٹ کریں, جانوروں کی کہانی کا, جانوروں کا ذکر ہے, بیل کی کہانی کا ذکر ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑی سورت ہے, یا پھر کیونکہ یہ مدنی ہے. بیل کی کہانی کا ذکر ہے, صحیح جواب. ویری گڈ, عائزہ فیصل نے صحیح آنسر دیا, بیل کی کہانی کا ذکر ہے. تو اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتی ہوں.
अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, ईमान और नेक अमल करना या रोना धोना? गलत। सही आंसर है ईमान और नेक अमल। ठीक है, तो अब आपकी तरफ आते हैं। आपका नाम क्या है? अब मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ। रोजा किन अफराद पर फर्ज है? नंबर 1 हर मुसलमान पर, नंबर 2 हर आकिल बालिग पर, हर मुसलमान मर्द पर, हर अमीर मुसलमान पर। नंबर 2 रिपीट करो। हर मुसलमान पर, हर आकिल बालिग पर, हर मुसलमान मर्द पर या हर अमीर मुसलमान पर? सोच के देना आंसर। नंबर 2 नंबर 2 सही जवाब। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में रोजे की फर्जियत का हुक्म आया है? नंबर 1 सूरत निसा, सूरत इमरान, सूरत बकरा या सूरत माइदा? रिपीट करो। सूरत निसा, सूरत इमरान, सूरत बकरा या सूरत माइदा? गलत। सूरत बकरा सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं इस बात की तरफ। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़कात किस पर फर्ज है? हर मुसलमान पर, निसाब वाले पर, सिर्फ मर्द पर या ताजिर पर? हर मुसलमान। गलत जवाब, निसाब वाले पर। हर मुसलमान तो है लेकिन उसके पास निसाब नहीं होती। मुसलमान बेचारे गरीब भी तो होते हैं ना। बच्चों के हमारे से थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बच्चे। हम इनको मौके देंगे और आगे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये इसलिए कि इनकी प्रिपरेशन हो ना। तो अब आपका सेकंड सवाल, 5 वक्त की नमाजों का जिक्र कुरान की किस सूरत में इशारा मिलता है? सूरत बकरा, सूरत अल-अंसारा या सूरत फानिया या सूरत कैफ? सूरत कैफ। गलत जवाब, सूरत अल-निसा। अब हम चलते हैं टीम बी की तरफ। आपका नाम क्या है? अलीशा इस्माइल। तो अलीशा इस्माइल, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नमाज कुल फर्ज रकात कितनी है? नमाज की कुल फर्ज रकात कितनी है? 15, 17, 19 या 20? नंबर 1 15, नंबर 2 कौन सी 17। नमाज? नहीं, कुल फर्ज पूरी 5 नमाजों अच्छा। की, पूरी 5 नमाजों की पूरी रकातें जो है फर्ज कितनी होती है अगर काउंट करें तो? नमाजें पढ़ती है ना अलीशा? तो काउंट करो, जल्दी काउंट करो कि फजर में कितनी फर्ज है, ज़ोहर में कितनी फर्ज है, असर में कितनी फर्ज है, मगरिब में कितनी फर्ज है और इशा में कितनी फर्ज है? 20। गलत जवाब, 17। तो अब आपका दूसरा सवाल है कि किबला किस तरफ है? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद नबवी, खाने काबा या कूत सिफा? खाने का बा। सही जवाब। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली, आपका पहला सवाल है, नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना क्या है? सुन्नत, वाजिब, फर्ज या मुस्तहब? गलत, फर्ज। तो अब आपका दूसरा सवाल है, नमाज तोड़ने वाली चीज़ों में से कौन सी है? मुस्कुराना, हंसना, खामोशी, आंखें बंद करना। इनमें से कौन सी? सोचो, मुस्कुराना से नमाज टूट जाती है, हंसने से टूट जाती है, मुस्कुराते तो ऐसे, या खामोशी से या आंखें बंद करना? या हंसने से। हंसने से। वेरी गुड, हंसने से। ठीक है, अब आप ले बराबर वाले को। आपका नाम क्या है? नूर इस्माइल। तो अजान देने वाले को क्या कहते हैं? इमाम, खतीब, मौज़िन या कारी? एक सेकंड। अजान कौन देता है? कारी साहब तो सबक पढ़ाते हैं ना, छोटा बच्चा है ना वो, कारी साहब सबक पढ़ाते हैं, मदरसे पढ़ाते हैं। अजान जो देता है वो क्या होता है? क्या मुअज्जिन होता है? हाँ, मुअज्जिन होता है भाई, मुअज्जिन होता है। तो अब आपका दूसरा सवाल है, नमाज की पहली शर्त क्या है? तकबीर, नियत, वुजू या अजान? सही जवाब, वेरी गुड। बच्चे के दोनों क्वेश्चन सही हो गए। क्या बात है। चलिए राउंड 2 की तरफ हम आते हैं। तो अब आपसे, रोजे की नियत ज़बान से ज़रूरी है? हाँ, नहीं, मुस्तहिब है, मुस्तहिब है। मुस्तहिब है या वाजिब है? दोबारा से, ठीक है, कि रोज़े की नियत जो है ज़बान से ज़रूरी हो, हम पढ़ते हैं, नियत करते हैं, तो ये ज़रूरी है, हाँ है, नहीं है, या मुस्तहिब है, क्या है, या वाजिब है? हाँ। गलत दोबारा जवाब। दोबारा मौका तो दे, चलिए चारों में से फिर बता दें। दो को स्किप करें, दो बताएं। दो को skip मुस्तहिब है या फिर वाजिब है?
इन दोनों में से बताओ, मुस्तरीब या वाजिब? गलत। नहीं। अब दूसरा सवाल आपका, अजान के वक्त मुंह में निवाला हो तो फौरन निकाल दें, निगल लें, कुछ नहीं कज़ा। जब मैं सहरी में आप अजान हो रही होती है तो उससे पहले अगर आपके मुंह में निवाला हो तो फिर? देखिए, आपने उठे हैं, आप सहरी कर रहे हैं और एकदम से अजान हो जाती है, अजान हो गया मुंह में, एमरजेंसी के तौर पर, वैसे तो नॉर्मली आप जल्दी खत्म कर लेते हैं, आपको मुंह में निवाला है और एकदम से अजान हो गई, अब टाइम का ख्याल नहीं रहा, तो क्या करेंगे? फौरन निकल दें, अंदर निकल लेंगी या फौरन- थूक देंगी या फिर बाकी फौरन निकाल दें, निगल लें, कुछ नहीं या कज़ा? फौरन निकाल दें। वेरी गुड। एतराफ किस अशरे में अफसर है? पहला, दूसरा, आखिरी या कोई भी नहीं? कोई भी। एतकाफ जो होता है, मस्जिद में जाके एतकाफ करते हैं ना, वो रमजान के पहले अशरे में लोग करते हैं, दूसरे अशरे में लोग मस्जिद में जाते हैं या तीसरे अशरे में? पता होगा ना कभी कौन से रोजे में मस्जिद में जाते हैं ना लोग, एतकाफ में बैठ जाते हैं। आई थिंक घरों में भी करती हैं। हाँ, ख़वातीन घरों में भी करती हैं। तो देखिए, पहले अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है, जो 21वां रोज़ा होता है वो ताक रातें शुरू हो जाती हैं, तो जो एतकाफ होता है वो कब से शुरू होता है? सोचें, दो स्किप करो, दो स्किप करके बताएं। आखिरी या कोई भी? आखिरी अशरा या कोई भी नहीं? अब सोचो आयजा, ये तो बहुत इजी है। एतकाफ जो है आखिरी अशरे में जाते हैं या किसी भी अशरे में नहीं जाते, या किसी भी अशरे में चले जाते हैं? आखिरी अशरे में। सेकंड क्वेश्चन, रमजान में उम्रे का सवाब आम उम्रा, हज के बराबर, फर्ज या वाजिब? सही जवाब। इस बार कुरान की जीनत किस सूरत को कहते हैं? सूरतुल रहमान, सूरतुल यासीन, सूरतुल मुल्क या सूरतुल मुज़म्मिल? कुरान की जो जीनत है ना, हर चीज़ की एक जीनत होती है, खूबसूरती होती है। सूरह यासीन। सुन, पहले आप सुन लें पूरा। तो कुरान की एक जीनत होती है, सुबह सवेरे घर में जो सूरतों की तिलावत लगाई जाती है, अक्सर कौन सी सूरत की तिलावत हम लगाते हैं? सूरह रहमान। सूरह रहमान। वेरी गुड। सूरह रहमान जो है वो कुरान की जीनत है। कुरान का दिल किस सूरत को कहते हैं? कुरान का सूरतुल दिल। यासीन, सूरतुल रहमान, सूरह सूरतुल यासीन। सीन। आप रोज़ा कैसे छोड़ सकते हैं? जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप छोड़ देंगे, या आप सफ़र पर जा रहे हैं और आपका सफ़र 78 मील से ज़्यादा है, लंबा सफ़र है, यानी कि आपका तकरीबन 8 से 10 घंटे का सफ़र है, तब आप छोड़ सकते हैं। और बाकी तो क्या थे? बाकी सफर मुश्किल हो या फिर नियत ना हो? हाँ, बताएं। नियत ना हो। गलत जवाब। सफर 48 में 77 किलोमीटर से ज़्यादा हो। रोज़े की हालत में दांतों के दरमियान फंसा हुआ खाने का दाना निकल लिया और वो चने के दाने के बराबर था, तो हुक्म क्या है? रोज़ा नहीं टूटेगा, सिर्फ कफ़ारा, रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा लाजिम होगी या कुछ नहीं? सोच के बताना अनिशा, ऐसे जल्दी जवाब नहीं देना, मैं समझाऊंगी। अच्छा देखिए, अगर आपने सहरी करती है ना, रोज़ा भी रखती है ना, माशाल्लाह मुझे पता चला रोज़े रखती हैं, तो अगर आपने रोज़ा रखा है और कुछ आपके दांतों में ना आपने खाया, चिकन खा लिया, दांतों में फंस गया और चिकन थोड़ा सा मोटा है, चने खाते हैं ना, वाइट चने के दाने के बराबर है, अगर आपने वो निगल लिया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जी। वेरी गुड। नियत का वक्त कब तक है? फजर से पहले, ज़वाल तक, असर तक या मगरिब तक? मैं समझाऊं? देखिए, जब रोज़ा रखते हैं आप सहरी में, तो सहरी में जब आपने रोज़ा रख लिया, फजर की नमाज भी पढ़ ली, आप नियत करना भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, नमाज भी पढ़ ली, सुबह हो गई, तो फजर से पहले नियत कर लें तो ठीक रहेगा, या ज़वाल तक आप नियत कर सकते हैं? बताओ, ज़वाल का मतलब 12 बजे तक। 12 बजे तक। वेरी गुड, ऐसे समझाया जाता है बच्चों को। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई रमजान का मकसद क्या है? सिर्फ भूखे रहना, सिर्फ नमाज पढ़ना, सवाब कमाना या सब करना? दो ऑप्शन बताएं इंशा उनको, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। सवाब कमाना या सब करना? सब करना। सही जवाब। वेरी गुड, क्या बात है। नूर इस्माइल सबसे छोटे कैंडिडेट, जल्दी बताओ। रोजे किस हिजरी साल में फर्ज हुए?
रोजे किस दिन, अच्छा उसके ऑप्शंस तो बताएं। पहली हिजरी, दूसरी हिजरी, तीसरी हिजरी या चौथी हिजरी? देखो रोजे जो है, मैं 2 ऑप्शंस बताऊंगा। रोजे जो है वो कब फर्ज किए गए, पहली हिजरी को या दूसरी हिजरी को? सोचो, थोड़ा और सोच लो, कंफर्म बताओ भाई मुझे, पहली या दूसरी? दूसरी। वेरी गुड। तयम्मुम कब किया जाता है? वजू के बाद, पानी ना मिले तब? बस दो ऑप्शंस बताएं। वजू के बाद या पानी ना मिले तब? अच्छा, तयम्मुम क्या होता है पता है ना? मट्टी से वजू करना। और मट्टी से वजू कब करते हैं? जब पानी ना मिले, या फिर वजू करने के पानी से वजू कर लिया उसके बाद फिर हम तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम कब करते हैं? जब पानी ना मिले तब करते हैं, या वजू के बाद? वजू के बाद करते हैं? वाह, वेरी गुड। वेलकम बैक। अंदाज़े रमज़ान, क्या बात है रमज़ान की। अल्लाह, दिल चाहता है कि ये अशरा जाए ही ना, और जैसे जैसे एक एक अशरा ख़त्म होता जाता है ना, दिल रो रहा होता है। और दिल उन्हीं का होता है जो मोमिन्स होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, जो चाहते हैं, जिनको रमज़ान का पता होता है, उनको पता होता है कि रमज़ान कितना कीमती महीना है। और 12 महीनों में से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिर्फ रमज़ान का जिक्र किया। अच्छा मेमन साहब, मुझे बताइएगा, अभी हम अगर बात करते हैं, फितरों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा अभी जो हम कंपैरिजन पे थे हम लोग, ठीक है ना, वो इससे पहले कंपैरिजन पे थे मुस्लिम कंट्रीज और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसके बीच में कंपैरिजन आप कैसे निकालें? वही बात मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा कि अमेरिका में और जर्मनी में या स्पेन में या दूसरे अभी वहाँ चले, चाइना चले थे ना, आपको इन सारे जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर रमज़ान का नहीं पता चलता, ठीक है ना। लोग शौक़ से जाते हैं, लेकिन जो है वो वहाँ रमज़ान मुबारक की वो रौनकें जो इस वक्त जो है वो आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही होंगी, वो रौनकें आपको जो सऊदी अरब में नज़र आ रही होंगी, या मुस्लिम ममालिक में जो रौनकें नज़र आ रही होंगी, आपको मसाजिद की रौनकें, आपको जो है वो रोडों में जो इफ्तार की रौनकें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इससे पहले अर्ज़ कर रहा था। अरे टाइमिंग का मुझे बताइएगा, टाइमिंग का जी, नुकसान का। तो वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जिसमें वो जो रौनकें हैं, वो रौनकें आपको उन कंट्रीज़ में नहीं मिल सकती, बल्कि उन कंट्रीज़ में आपको फितरें मिलेंगी। आप शायद उसकी बात करें तो मैं उसी तरफ आ जाता हूँ कि अब देखें फितरे किस तरह मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी मिलते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा। यहाँ पे फितरे कहेंगे या बिदअत कहेंगे? मैं उस पर आ जाता हूँ। मैं ज़रा देखें, जो अब नॉर्वे है, अब नॉर्वे जो है वो दुनिया का वो मुल्क है कि जिसमें जो है वो आप 6 महीने रात है और 6 महीने दिन। अब 6 महीने जो रात है और 6 महीने दिन है, तो वो वहाँ पर मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक सफ़रनामा पढ़ रहा था। अच्छा आशिफ मेमन साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकती हूँ। हमारे साथ जो है पेशावर से लाइन पर हैं मौसम खान साहब भी हैं, और जो कि सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं PTI से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात को कंटिन्यू करते हैं। कितनों की आप बात कर रहे थे? मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब वो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक सफ़रनामा पढ़ रहा था दुनिया में आगे, तो उसमें उन्होंने जो है वो वहाँ का जिक्र किया कि वहाँ एक फितना वहाँ खड़ा हुआ कि जी 6 महीने रात है और 6 महीने दिन है, तो ये पूरा चूँकि हमारी जो नमाजें हैं 5 नमाजें हैं, 5 नमाजें सूरज के हिसाब से हैं, तो 6 महीने सूरज गुरूब नहीं होता और 6 महीने सूरज जो है वो ये तुलू नहीं होता, तो जो है वो यहाँ पूरे साल में 5 नमाजें पढ़ी जाएंगी, ठीक है ना। तो अब जो है वो वहाँ पर कितना बड़ा हो गया, ये एक बहुत बड़ा फितना है। और इसी तरह तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर रोजा रखा जाएगा तो क्या पूरे साल के 6 महीने का रोजा होगा या किस तरह होगा? तो बात ये है फिर वहाँ पे उलमा इकराम जो है वो और शायद जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया और सारी चीज़ें वहाँ पे वो हुई कि इस तरह ये नहीं है, तो इस तरह के फितने उठते हैं। अब पाकिस्तान में भी एक मुत्तफ़िका जो एक कुरान मजीद के नाम से एक जो है वो कुरान मजीद का एक तर्जुमा शाया हुआ। अब पहले उसी द इल्म फाउंडेशन ने जो है वो इसको शाया किया, और जो है वो जब इन्होंने
جب یہ شائع کر رہے تھے تو ہاں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جی سارے علماء کرام سے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی تائید لی، اور اس میں اس وقت وہ علماء کرام 28 اس وقت فتاوی اچھا یہ آپ کی پارٹی پاکستان رائٹ پارٹی جو ہے انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے؟ لیکن ہمارے بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ میں اس طرف آپ کے پاس آتی ہوں۔ معظم خان صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی معظم خان صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ رمضان آپ نے چونکہ آپ بھی فارن کنٹری سے ہیں، آپ بھی بیلجیم سے ہیں، تو اب مجھے پہلے تو یہ رمضان کا بتائیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر گیسٹ موجود ہیں، آپ کے پیارے دوست اشرف میمن صاحب پاکستان رائٹ پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ تو پہلے تو مجھے رمضان کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کافی ٹائم تقریباً لمبی عمر آپ کی نا اوورسیز گزری، انٹرنیشنل کنٹریز بیلجیم میں گزری ہے، تو کیا فرق ہے اس دفعہ پاکستان میں اور بیلجیم میں اگر سحری اور افطاری کو دیکھا جائے تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ تو اپنا ملک میں ایک آزاد وہی جیسے کہ آپ نے فرمایا محمد صاحب کی یہاں پہ نماز سحری، اچھا دیکھیں اس بات میں تو متفق ہے سب تمام اس بات میں متفق ہے کہ پاکستان کے اندر جو روزے کا مزہ ہے نا وہ آپ کو کسی کنٹری میں نہیں ملے گا۔ میرے خیال سے میں کہتا ہوں مسلم ممالک میں، تمام مسلم ممالک میں ایک بڑا ایک اچھا رونق ہوتی ہے پورے وہ تمام مسلم ممالک، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا مجھے ابھی اشرف محمد صاحب آپ ذکر کر رہے تھے فتنوں کا، تو فتنوں کے حوالے سے ابھی جو قرآن کے ترجمے کی بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں تھوڑا۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دا علم فاؤنڈیشن نے ایک ترجمہ شائع کیا اور جو ہے وہ ترجمہ پہلے دکھایا گیا کہ تقی عثمانی صاحب کو، مولانا محمود میگر صاحب کو اور دوسرے علماء کرام کو، ان سے تائید لی گئی، اور جب ان سے تائید لی گئی تو اس میں وہ چیزیں اس وقت شامل نہیں تھیں جو کہ چیزیں بعد میں شامل کی گئیں، یعنی کہ بعد میں جو ہے وہ پورے بالکل یہ 100% جو ہے وہ شرارت اس میں، یعنی کہ 100% جو ہے وہ یہ شرارت کی گئی، اور جو ہے وہ الحمدللہ جب اس مسئلے کو اہل سنت والجماعت نے اٹھایا تو پھر جو ہے وہ سب کی آنکھیں کھلی، اور چونکہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے، جو فتنے کا اصل ذکر جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس متفقہ اس ترجمے کو متفقہ قرآن پاک کا نام دیا گیا، متفقہ قرآن مجید کا یہ ترجمہ کا نام دیا گیا، اور پھر وہ بچوں کو اسکولوں میں مفت بانٹا گیا، مفت میں دیا گیا، گھروں میں دیا گیا کہ وہ یہ پڑھے، اور یہ متفقہ ہے۔ جی یہ میں نام نہیں لینا چاہتا،
तो तकी उस्मानी साहब ने उसको cancel जी किया? उसको दोबारा उसको जब ये मुत्तफिका के नाम से जब ये छपा हाँ। और जब स्कूलों में बांटा गया, जब ये घरों में बांटा गया मुफ्त और जो मसाजिद में बांटा गया, तो फिर जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, बड़े बड़े उलमा किराम ने इस पे दोबारा इसको बैठा, इसको देखा और अब तक जो है वो मुख्तलिफ 28 फतवे इसके खिलाफ आ चुके हैं, जिसमें दारुल कराची भी शामिल है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी फतवा आ चुका है, मौलाना मोहतरम मेंगल साहब का भी फतवा आ चुका है। मुख्तलिफ बड़े बड़े जो मदारिस हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े मदारिस हैं, तकरीबन सबका जो है वो इस हवाले से फतवा आ चुका है कि इस मुत्तफिका कुरान मजीद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मैं बच्चों को भी ये आज आपके इस ये प्रोग्राम में मैं इनको कहता हूँ कि अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है या आपके स्कूल में लाया गया है तो यकीनन इस चीज़ को देखें और आप भी देखें। इन स्कूलों में, जिन स्कूलों को आगे आप बुला रही हैं, उनको जरूर देखें कि जो है वो वहाँ पे ये ना पढ़ाया जाए। इतने के साथ साथ मैं एक और बात भी अर्ज करता चलूँ। अच्छा मैं मौजम साहब मुझे बताएं, जैसे कि अभी कुरान पाक के नुस्खे जो हैं वो पुराने लेकर उसमें एडिटिंग करके, उसमें अमेंडमेंट करके, उसके तर्जुमे को थोड़ी सी अपनी तरफ से बनाकर ये दिए गए हैं, स्कूलों में तकसीम हो रहे हैं और इसमें बाकायदा तकी उस्मानी साहब की तायद थी और बड़े बड़े उलमा कराम की तायद दी थी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? भारत के रमजान तो वहाँ पर गर्मियों में हमने ऐसे रोजे भी रखे जो तकरीबन 21 घंटों का 20-21 घंटों का रोजा था। तो बहुत तकरीबन जो गर्मियाँ होती है 10 जुलाई अगस्त में, तो बहुत लंबे दिन होते हैं और वहाँ पर सूरज बहुत देर तक घूम होता है। ये बेल्जियम की बात कर रहे हैं? जी बेल्जियम हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। अच्छा, ये कंट्री सेनेगल में तो बहुत तशवीशनाक बात है। जिसने भी की है ये किरदारों को सामने लाने की जरूरत है और हुकूमत जो वक्त जो है वो इसके जिम्मेदार है कि इनके जवाब में एक्शन है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। फिर हमारे जो मजहबी उमूर की जो मिनिस्ट्री है वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनके सामने जैसे जो चीज़ें हैं वो सामने लाई जाए। और आपने अच्छे इशू को उठाया है क्योंकि हमारा जो ईमान है, मजहब है, वही तो कुरान मजीद पर बुनियाद है हमारी। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी अगर कोई हमारे मुसलमानों की शक्लों में ऐसे बदनुमा किरदार मौजूद है जो कुरान मजीद के साथ इस तरह घिनौना काम करेंगे तो इसकी माफी तलाफी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सख्त मेरा ख्याल में जो सजा है वो देनी चाहिए और इसकी छानबीन की ज़रूरत है। जिसने ये किया है, जो किरदार इसके पोशीदा है और जो सामने है, दोनों को सामने लाना चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई माफी तलाफी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे इस्लाम मजहब की बुनियाद है। कुरान मजीद जो है इस्लामी किताब है, ये कोई आम किताब तो नहीं है। जिसमें किसी ने किताब लिखी हुई है और 100 साल 200 साल पहले और किसी ने उसमें अमेंडमेंट्स कर दी, इसमें एडिटिंग कर दी। तो ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात की है अशरफ भाई ने। और अगर यही इसी तरह है जैसे अशरफ भाई बयान कर रहे हैं तो इस पर हुकूमत वक्त को एक्शन लेने की जरूरत है। इस पर तो FIR दर्ज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। आसानी से जाने नहीं देना। बिल्कुल। अशरफ अहमद साहब, मुझे पता है आपने बहुत अच्छा ये इशू रेज किया है कि अच्छा एक बात तो मैं व्यूअर्स आपको बताती चलूँ, आज इस ट्रांसमिशन के अंदर रमज़ान की बरकतें तो देखें कि दो अपोजिट पार्टियां आज हर मौजू पर मुत्तफिक है। आज रमज़ान के ऊपर भी मुत्तफिक है और कुरान पाक से जो है अल्लाह ताला की आखिरी किताब है उस पर भी मुत्तफिक है। भाई ये मुझे तो ये देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसी तरह से एक पेज पर हो। मौजम खान साहब, आप और आज मुशर्रफ साहब, जो अशरफ अहमद साहब हैं, आज मुत्तफिक हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। तो मेरा ख्याल में जो हमारा जो बॉटम लाइन है जी। वो हमारा चीन है, मतलब बिल्कुल वहाँ पर और फिर हमारा मुल्क है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मेरा ख्याल में किसी भी पार्टी को कोई इख्तलाफ तो नहीं हो सकता है।
पसंद है, लेकिन वो इस तरह बात को स्टेज पर नहीं ले जाना चाहिए जहाँ आपसे मुल्क के लिए नुकसान हो, या हमारे जो हमारा मदर के थीम है उसके लिए नुकसान नहीं हो। तो इन दोनों चीज़ों पर हम सब मेरा ख्याल रखना। बिल्कुल। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बेस से वापसी में हम अशरफ अहमद साहब मुझे बताइएगा, इन्होंने कहा एक दीन और दूसरा मुल्क। देखिए बिल्कुल उन्होंने सही बातें की और मैं मौसम भाई को अप्रिशिएट करता हूँ, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। ठीक है, सियासी तलाब होती है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो ब्रेक के बाद अंदाज़े रमज़ान विद नाहिद। वेलकम बैक। अंदाज़े रमज़ान विद नाहिद शेख। और क्या कहूँ इस आखिरी अशरे के बारे में, और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, ये आखिरी अशरा, ये रहमत का अशरा हमसे जुदा हो रहा है। और जब ये रहमत का अशरा चला जाएगा ना, अभी तो हमें बिल्कुल परवाह नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन यकीन करें एक एक पल फरिश्ते नीचे, इसलिए अफ्तार का वक्त ऐसा वक्त होता है, इतनी कीमती घड़ियाँ हैं, इतनी कीमती घड़ियाँ हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि फरिश्तों से कि जाओ फरिश्तों और मेरे बंदों के घर में जाओ और फैल जाओ, देखो जो 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 मांग रहा है ना वो उसको अता करो, उसको दे दो, और मेरी रहमत सबके लिए है, बेशक जो गुनाहगार है, खताकार है, जो भी मांग रहे हैं मैं सबको दूंगा, सिवाय वालिदैन के नाफरमान के और शराबी के। ऐसा ही है ना तुम्हें मतलब। अच्छा, हम लोग उस कॉम्पिटिशन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड राउंड है, ठीक है, लास्ट राउंड है हमारा। एक एक क्वेश्चन किया जाएगा, बहुत सोच समझ के जवाब देने हैं आप लोगों ने, ठीक है। चलिए पहले चलते हैं हम आयजा फैसल की तरफ। जी आयजा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नमाज के औकात किस चीज़ से मालूम होती है? चांद से, सूरज से, सितारे से या हवा से? सोचे नमाज के औकात जो है, पहले ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थी, अब नमाज आप देखती है ना कि असर का वक्त खत्म हो रहा है, कैसे पता चलता है? चलो घड़ी नहीं है, इन्होंने आंसर देना है, चांद से या सूरज में, दो का नाम लूँगी, तुमका बता दें। सूरज। वेरी गुड, सूरज। चले, तो अब आपका दूसरा नहीं, एक एक क्वेश्चन है ना। जी आयजा हुस्ना। कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। वेरी गुड, ठीक है। इस बार रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? सोम या रुक जाना? सोम। वेरी गुड जी। तो अलीशा इस्माइल, रोजे के लफ्जी मायने क्या है? रुक जाना, चले जाना या दो बताएं। भूखे रहना? लेकिन दो सिर्फ दो बताएं। रुक जाना या भूखे रहना? रोजे के लफ्जी मायने रुक जाना या भूखे रहना? रुक जाना रुक जाना। या भूखे रहना? जी, आंसर दिया उन्होंने, क्या सही है? बताइए निमिषा, बताइए। सही जवाब। सही जवाब, अलीशा का सही जवाब। अच्छा जी, मोहम्मद अली तैयार है? चलें। अगर हम रोजा नहीं रखते किसी भी वजह से, तो क्या वो कज़ा है, माफ है या कुछ भी नहीं? दो बताएं निमिषा, दो बताएं। कज़ा है या माफ है? अगर हम रोजा नहीं रखते, ठीक है, अगर आपकी अलीशा ने रोजा नहीं रखा, तो नहीं रखा, वो कज़ा हो जाएगा कि उसको बाद में रखना पड़ेगा या उसको माफ है? बाद में रखना होगा। नहीं, दोबारा से सुनो। अगर उसने रोजा सही जवाब। सही जवाब, अरे वाह, सही जवाब, क्या बात है। नूर इस्माइल सबसे छोटे कैंडिडेट हमारे। जी, बिल्कुल आसान सा सवाल कीजिएगा इनसे, बहुत ही आसान सा। अगर कोई शख्स रमजान में जानबूझकर रोजा तोड़ दे बगैर किसी शरई अज़र के, तो इस पर क्या लाजिम होगा? सिर्फ कज़ा, सिर्फ कुफारा, कज़ा और कुफारा? दो बताएं। अच्छा, इसके लिए मैं कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेती हूँ, ये बहुत मुश्किल थोड़ा क्वेश्चन है, ये शरई यूजर वाला। तो अच्छा, नूर इस्माइल के हमारे सबसे छोटे क्या एज है बेटा आपकी? 6 साल। भाई 6 साल का कैंडिडेट है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आसान सा सवाल है, ये बताएं कि नमाज पढ़ना फर्ज है या नहीं है? अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया या नहीं दिया? दिया। वेरी गुड, यानी कि फर्ज है, नमाज क्या है हम पर? मरने के बाद सबसे पहला सवाल क्या होगा? सबसे पहला सवाल क्या होगा मरने के बाद? जब हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तो फरिश्ते आएंगे, सबसे पहला सवाल किस चीज का करेंगे कि दुनिया में भाई तुमने खाना खाया नहीं खाया, ये पूछेंगे, या तुमने चॉकलेट खाई, या तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्या पूछेंगे? नमाज। वेरी गुड।
भाई तीसरा राउंड, और हम इसके जो रिजल्ट है वो बाद में बताएंगे। हम लोग चलते हैं अच्छा करंट अफेयर्स की तरफ। हमारे साथ जो है हमारा जो बहुत ज़बरदस्त नात ख्वाब है राव नवीद हसन साहब, आपसे सुनेंगे एंड में बहुत ऐसी नात सुनाइएगा जो दिलों को छू ले। जी अच्छा मेमन साहब, पाकिस्तान इस वक्त जो है बड़ी दो राय से गुजर रहा है और आपको पता है हाई अलर्ट हो गया है हर चीज़ें। रात को कल जंग जारी हो गई थी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, ये भी कलमा तैयब नारा लगाते हुए शुरू कर रहे हैं, वो भी नारे तकबीर कहते हुए शुरू कर रहे हैं। कौन लड़वा है, कौन है इसके पीछे? जी अशरफ साहब। देखिए जी, वाक़तन बहुत अफसोस की बात है और कि दोनों मुसलमान ममालिक जो है वो आपस में जंग की कैफियत में है। तो हम तो यकीनन ये चाहेंगे कि ये जंग की कैफियत ख़त्म हो और जो है वो बातचीत के ज़रिए जो है वो तमाम मसाइल को हल करना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है, ठीक है। और जंग जो है वो वैसे भी हम जो हालत जंग में कई एक दो दहाइयों से हम जो है वो हालत जंग में है और हमने जो है वो एक बड़ा मुश्किल वक्त हमने गुजारा है। तो जो है वो जंग तो किसी भी सूरत में मैं तो बल्कि ये एडवाइस भी करूँगा कि उलमा इकराम को आगे लाकर, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो है वो उलमा इकराम का एक बड़ा जो है वो उनका एक करीबी ताल्लुक है, ठीक है। एक माजी भी रहा है और जो है ख़ासकर जो है वो अगर हम कुछ ऐसी मखसूस शख्सियात हैं जो कि पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियात हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, अल्लामा मोहम्मद अहमद रिजवानी साहब हैं और मौलाना फजल रहमान खलील साहब हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका एक जो है वो मुस्लिम दुनिया में जो है वो एक असर रसूख है और जो है वो उनकी बात सुनी जाती है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि जो है वो ऐसे लोगों को हुकूमत इस्तेमाल करे और जो है वो अमन के लिए संजीदा कोशिश करे। इसके साथ में एक बात ज़रूरी कहना समझता हूँ कि किसी भी तरह से, चाहे वो इंडियन प्रॉक्सी हो या ईरानी प्रॉक्सी हो, पाकिस्तान में हम किसी को भी जो है वो दहशतगर्दी की इजाज़त हम यकीनन नहीं देंगे। और जो है वो अगर कोई भी मुल्क हो चाहे वो अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान में करता है तो यकीनन जो है वो हम फिर जो है वो हम जो है वो हक रखते हैं अपना कि जो है वो हम उस दहशतगर्दी का मुकाबला करें और उन दहशतगर्दों के जो है वो उनका खात्मा करें। और जो है वो हम हक रखते हैं, पाकिस्तान जो है वो इस बात का हक रखता है कि जो है वो अपना दिफा करे। लेकिन अशरफ अहमद साहब, मासूम कहीं भी मरे, ठीक है ना। आप अगर अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप हथियार उन पर इस्तेमाल करें जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो टेररिज्म में मुलाजिम है, जो टेररिस्ट है और उनकी मामलत जो कर रहे हैं, सब जानते हैं। रॉ के एजेंट मिले हुए उनके साथ, इनके उनको माविन है। और साथ साथ अभी तो मैं कह दूँ कि जो है इसराइल उसने भी कहा है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो मामला जो कर रहे हैं, आई थिंक हमारा टारगेट वो भी होने चाहिए। मासूम बच्चे किसी भी मुल्क के हों, वो जो शहीद मरते हैं कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर के इधर हो या बॉर्डर के उधर हो, तो मेरे ख्याल से मैं तो उसको जो है कंडेम करूँगी। जी मौसम साहब, आप मुझे बताइएगा कि बॉर्डर के इधर या उधर दोनों तरफ से नारे तकबीर की आवाज़ें बुलंद करके शुरू हो गई गोलाबारी, क्या ये सही है? देखिए जी, ये जो मामला है ज़रा पेचीदा है और इस तालिबानी अफगान हुकूमत से पहले भी ये मसाइल थे। समझना हमें चाहिए होगा कि मामला कहाँ फंसा हुआ है। जब इससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत थी, उससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमत थी, तो वहाँ भी हमारी सरकार की यही मुसलसल एतराज़ात रहे हैं कि आपकी तरफ से दखल-अंदाज़ियाँ हो रही है और वो TTP जो दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हुई है तो उनकी तरफ से बहुत इस हुकूमत के साथ भी जो मुतअद्दिद दफ़ा ये इशूज़ उठाए गए हैं, लेकिन वहाँ से खातिर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। और एक जो हुआ है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्योंकि अफगानी हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और 54
हुकूमत आई है बरसर इक़्तिदार आप कहें इसको, तो उसके साथ भी जब हमारी जो ताल्लुकात है वो ख़राब है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये कम्युनिकेशन जहाँ खराबी हुई है इसको दूर करने की ज़रूरत है और डिप्लोमेसी, अच्छी डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, क्योंकि इससे फ़ायदा हिंदुस्तान ही उठा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं उठा रहा, नहीं, और भी है, और भी लोग हैं जो दो भाइयों को लड़वा रहे हैं। जो भी लोग हैं वो तो है, लेकिन जो हम सामने नजर आ रहा जी। है वो तो हिंदुस्तान है। हमारा जो असल दुश्मन वो तो हिंदुस्तान है और वही खुश हो रहा है। तो इसराइल ने भी तो कह दिया है ना मौसम साहब, इसराइल ने भी तो कह दिया। वो इसराइल तो है, लेकिन हमारा जो सबसे बॉर्डर पर है जिससे हमें हमेशा खतरा रहा है, वो तो है ही हमारा दुश्मन। उसकी मीडिया को आप बताएं तो कि वहाँ पर किस तरह फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सब कहते हुए भी हमारे यहाँ पर जो नकायस पाए जाते हैं तो हमें उस पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, हिंदुस्तान के साथ जंग 5 दिनों की जंग हुई है, तो अगर मैं कहूँ कि हमारी जो पार्टी है PTI ने उसको मुकम्मल सपोर्ट किया। हमारे जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स थे उन्होंने उस बयानिए को पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के बयानिए को मात दे दी और उसको DJSPR ने खुद सराहा। अब इस जो कल वाक़या हुआ है, जो जंग शुरू हुई है, उसमें भी बिला तफरीक हमारे जो CM साहब KP के हैं उन्होंने तो ठोक अल्फाज में कहा है कि मुल्क की 1 इंच की भी हम दिफा करेंगे और हम मतलब मुत्तहिद है, मतलब एक पेज पर आ गए आप लोग, देखिए पाकिस्तान बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। एक पेज पर आ गए। और खान साहब तो खुद कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा है, बिल्कुल। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे जो इख्तिलाफात है वो सियासी इख्तिलाफात है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन गिले शिकवे अपने घर में किए जाते हैं, अपनों से किए जाते हैं। बिल्कुल लेकिन अगर इस तरह हमला होगा तो फिर तो अपने मुल्क के दिफा के लिए हम अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। हम खड़े हैं, मुल्क के साथ कर रहे हैं, अपनी फौज के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमें जिस तरह दीवार में लगाया जाता है, आज खुद DJSPR ने खुद कहा है, उसका बयान आज जो रिकॉर्ड पर है कि जितने सियासी पार्टियां हैं वो मुल्क की दिफा के लिए एक ही पेज पर है, लेकिन आज तो वो ये बयान दे देते हैं, लेकिन कल हमारे जैसे अवाम, सियासी वर्कर्स जो मुल्क की खातिर जो जानों के नजराने भी पेश करते हैं, कल हम ही दहशतगर्द वो हमें बना लेते हैं, कल हमें वो उड़ा देते हैं, हम अपना कोई मौक़िफ़ देते हैं, सियासी मौक़िफ़ देते हैं, हमें गद्दार डिक्लेयर करते हैं, तो फिर हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? इनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जो है वो खान साहब है, वो ये तन्हाई जेल काट रहे हैं। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की खेती के लिए, सलामती के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो सियासी अब्दरी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने शुरू में कहा है कि जब मुल्क की बात आती है तो फिर सियासी पार्टी की वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क का सब सोचते हैं और मुल्क के लिए खड़े होते हैं। और लेकिन अफसोस यही है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी जीते, नुकसान दोनों अतराफ का होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन मसलों का हल बातचीत से ही होता है। और हमारी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि बातचीत से मसाइल को हल करे, लेकिन अगर दूसरे लोग, दूसरे अफगानिस्तान ने जो कल किया है उसका भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उनको कम अज़ कम हमारा हमसाया मुल्क है, बराबर मुल्क है, उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया है, तो वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। जी अच्छा मेहमान साहब, आप क्या कहेंगे? बस करें, फिर हमने ब्रेक पे जाना है।
مجھے بتائیں کہ آپ متفق ہیں اس بات جی بالکل موسم بھائی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہم اس معاملے میں ایک پیج پہ ہیں. میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا موقف اس حوالے سے یہی ہے. میں بس ایک آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بالکل میں نے اس سے پہلے اپنی پارٹی کا موقف آپ کو بتایا کہ جی بالکل جنگ میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت ہے. بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے. لیکن جہاں پر پاکستان کی سلامتی کی بات آئے گی, جہاں پر پاکستان کی ڈیفنس کی بات آئے گی, تو یقیناً ہم جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, اور جو ہے وہ ہم لازمی کھڑے ہوں گے. اس کے ساتھ میں ایک جملے میں ایک بات عرض کر دوں کہ چاہے وہ انڈین پراکسی ہو یا چاہے وہ ایرانی پراکسی ہو, کچھ لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ وردی, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یا جو ہے وہ پاکستانی فوجی جو چوکیاں ہیں اس کو جلاتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ اتار کر کلدم تنظیم کا پرچم لگاتے ہیں, ان کے خلاف بھی پاکستان کے اندر کارروائی ہونی چاہیے. اور جو ہے وہ بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. ہم اس پہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ موقف دیں. صحیح. ویلکم بیک. انداز رمضان منائے شیخ, قیمتی گھڑیاں, اور بالکل ہم افطار کے قریب ترین ہیں, اور نعت رسول مقبول سنیں گے. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو کوئز کمپٹیشن ہے اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا, اور جو ہے AWT کی طرف سے گفٹس ہیں, اور انداز چینل کے CEO کی طرف سے بھی گفٹ ہیں, اور جو ہے ہم آپ کو انداز چینل کے CEO سے بھی ملوائیں گے, ان سے بھی 2 باتیں کریں گے ہم. تو ابھی کیا سنا رہے ہیں راؤل علی صاحب؟ ایک میں نے ان پر قربان زمانہ ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, دو رب دو عالم کا محبوب یارانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کل پولیس ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے, کل پولیس ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے. سیدہ کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں تیرے در کے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ.
دم میری قسمت میں سجدے ہیں سی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ ہاں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، مدینہ یاد آتا ہے، وہ سبزے گنبد خضرا چمکتا رے وہ پیاری گلیاں، وہ سبزے گنبد خضرا چمکتا رے وہ پیاری گلیاں، مدینے والے آقا کا وہ روزہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا آتا، مدینہ یاد آتا ہے، بلا لو طیبہ میں مجھے شاہ باروبر مدینے میں، تجلی ہی تجلی ہے، عاجزی ہے، ماہ رمضان کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے، بلا لو طیبہ میں یا رسول اللہ، ماہ رمضان کے صدقے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، مدینہ یاد آتا ہے، ہمیں سرکار بلوا لو، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب راؤ نبی قسم، بہت اچھی اچھی نعتیں سناتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے چینلز میں ٹی وی کے اندر اور ARY میں بہت سے اسٹریم چینلز کے اندر جاتے ہیں، اور آج کل انداز ٹی وی کی جو رونق بنے ہوئے ہیں، انداز کی ٹرانسمیشن کے اندر، انداز کی افطار ٹرانسمیشن کے اندر، اور بہت تقریباً ہر پروگرام میں آپ آ رہے ہیں، اور کیونکہ انداز ٹرانسمیشن جو ہے نا آپ کو بالکل ایگزیکٹ وہی چیز دکھاتا ہے جو ہوتی ہے، اور انداز کا یہ انداز ٹرانسمیشن جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو آگے لے کر آئیں، ان میں منتقل کریں، تو انداز ٹرانسمیشن کے لیے بھی دعا کیجیے گا جی۔ تو بہت زبردست نعت سنائی تھی راؤ نوید نے، اور اس کے بعد جس طرح کوئز کمپٹیشن کا ہمارا باقاعدہ اس فرائیڈے سے آغاز ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ مختلف اسکولوں کے بچوں کو ہم بلائیں گے، اور جو ونر ہر سیگمنٹ میں ہوتا جائے گا اس ونر کو ہم پھر ایڈ میں وہ تینوں ونر جو ہوں گے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو فرسٹ آئے گا تو ظاہر ہے جو بڑا انعام ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں انداز چینل کے انداز شہر جو ہے نیوز پیپر بھی ہے، اور اس کے ساتھ انداز ٹی وی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور ان کے جو چیئرمین نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، جس طرح آپ نے یہ ٹی وی کا آغاز کیا انداز، اور اسٹارٹ کرتے ہی جو افطار ٹرانسمیشن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے مطلب کتنی اچھی بات ہے کہ
ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ है और साथ ही जो है रमज़ान की ट्रांसमिशन से आगाज़ हो गया है। तो मुझे अंदाज के बारे में थोड़ा सा बताएं। अंदाज एक्चुअल बात यह है कि माह रमज़ान में शुरू करने का मतलब ये है कि जितनी नेकियां आप लोग बटोर सकते हो बटोरो, ऐसा ही है। ऐसा ही बिल्कुल। और मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला से सब मिल के दुआ करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब मिल के ये दुआ करें कि इस चैनल की परवान चढ़े और आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाए। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान में पाकिस्तान भी बना और अब माह रमज़ान में अंदाज टीवी का आगाज़ किया है और बहुत कुछ सोच समझ करके इसकी मतलब प्लानिंग की गई है और इसमें मैं बेहद मशकूर हूँ। मैं अपने जो कुलीग है, जो लोग मेरे साथ चल आप रहे नाम हैं, ले सकते हैं। हाँ, जैसे आपको कह रहे हैं शकील भाई हैं, हुदा है, खुर्रम है और क्या क्या नाम है उसका, हाँ हुदा और ताहा है, तलहा है। नाइल शेख एक ऐसा नाम है जो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है और अपने प्रोग्राम से और अपनी लगन से लोगों के दिलों में राज करने वाले हैं। आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो कुछ अच्छा होगा। और एक और नाम भूल गए, हमारे कैमरामैन जो बड़ी मेहनत से कैमरामैन इस्माइल भाई हैं, खुर्रम भाई हैं और ये क्या नाम है आपका भाई, कहाँ गए? अच्छा नहीं, वो नहीं है, ताहा नहीं है। अच्छा, तो हमारी जो जैसे जगह कमर नईम साहब ने जिनके नाम लिए वाकई वो हमारी टीम है और जो मैं सेट पे सामने बैठी हुई हूँ ना, उसके पीछे जो काविशें है ना वो इन लोगों की है और इन लोगों की है जिसमें ताहा है, जिसमें खुर्रम है, जिसके अंदर हुदा आपी है, जिसके अंदर इस्माइल भाई है, जिसके अंदर और बहुत सारे नाम जो मुझे याद नहीं है, तो वो सब भी हमारी टीम का हिस्सा है और इन सब का सहरा जाता है कमर नईम साहब को। ये इनकी मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा। अच्छा, हमारे दरमियान जो है पाकिस्तान राहत पार्टी के मरकजी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अशरफ मेमन साहब भी मौजूद हैं और अंदाज टीवी के अंदर जो है बाकायदा इन्हीं के जो हम लोग कोऑर्डिनेशन हमारे साथ कर रहे हैं, हमें जो है मुफ्ती हजरात भी हमारे जो है उनको सेंड कर रहे हैं। और अब जो हम चलते हैं अनाउंसमेंट की तरफ, जो क्विज कंपटीशन का अनाउंसमेंट है, जी हमारे साथ को होस्ट भी आज है जो कि स्मार्ट स्कूल से, हमारी जो बच्चियाँ हैं वो स्मार्ट स्कूल से है, कैंपस जे से, ब्लॉक जे से, तो जो को होस्ट है वो भी स्मार्ट स्कूल से है, कैंपस जे ब्लॉक से। जी रिक्शा, सबसे पहले तो आप अनाउंसमेंट करें। तो मुझे तो बहुत हैरत हो रही है कि 6 साल का बच्चा, उसने सारे सही जवाब दिए, वो भी इतने मुश्किल, जिसका नाम है नूर समीम करके जो बैठा हुआ है सबसे छोटा बच्चा। तो नूर समीम भाई क्या बात है, आप तो फर्स्ट आ गए, आपने राउंड ही मार लिया। सेकंड में हमारे जो है मोहम्मद अली आयजा हसना है, आपके लिए भी भाई बहुत आयजा हुस्ना, और इसके साथ साथ मोहम्मद अली आप भी भाई, क्या बात है, क्या बात है। और हमारे जो थर्ड है वो असबा है, आयजा फैसल है और अलीशा है। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त, क्योंकि नो डाउट सवाल थोड़े मुश्किल। अच्छा, जो है कमर नईम साहब जो चेयरमैन है अंदाज टीवी के, वो शायद बच्चों के लिए कुछ खास है, आप बता दें क्या बच्चों के लिए आपने मंगवाया है? मंगवाया, पिज्जा मंगवाया आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह ताला भी पहुंचेगा। पिज्जा मिल के खाएंगे आप, पिज्जा हम सब मिल के खाएंगे। और ये इसको फर्स्ट आने की एक वजह है, आप देखो 1 2 3 4 5 चश्मा नहीं है, उसके बाद चश्मा है, वो पढ़ता ज्यादा है इसलिए उसके पास चश्मा लगा हुआ है ना भाई। इसका क्या मतलब है सर कि इन बेचारों के पास चश्मे नहीं है? नहीं, हाँ, वो देखो उसकी कम उम्र में चश्मा लगने का मतलब किसी भी चीज को वो बड़े मतलब तनदेही से कर रहा है। मेमन भी है, मेमन है, इसीलिए तो जीत गया। अच्छा, मेरे हिंट्स को समझ भी रहा है, मैं हिंट्स तो इनको भी दे रही थी, लेकिन वो लोग मेरी आंखों में देख रहे हैं, मेरे हिंट्स को समझ रहे हैं। अच्छा चलिए, अब हम जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम बच्चों को यहाँ पर बुलाएंगे। सबसे पहले नूर इस्माइल आ जाए भाई, सर इनको इधर आ जाए, इधर आ जाए। पिक्चर्स है भाई, इनकी पिक्चर्स भी ले। 6 साल का छोटा सा बच्चा अंदाज टीवी की इफ्तार ट्रांसमिशन के अंदर क्विज कंपटीशन के तीनों राउंड इसने विन किए हैं। अच्छा, सेकंड कौन है? सेकंड है मोहम्मद अली, आ जाए भाई अशरफ मेमन के पास, आप खड़े हो जाए इधर। जी जी, ये पिक्चर्स है भाई, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो
कमाल कर रहे हैं। AWT की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स है और अंदाज टीवी की तरफ से पिज्जा है बच्चों के लिए। आयजा हुस्ना, अच्छा है भाई आयजा हुस्ना, ये भी सेकंड है। जी तो आयजा फैसल इधर कमर साहब से आप लें गिफ्ट सर। ये स्मार्ट स्कूल जो खेलों में भी आगे है, क्विज में भी आगे है और अल्लाह ताला तरक्की दे। और जो है हमारे पास इस बार आ जाइए सर के पास। शकील भाई आ जाए इधर, आ जाए आ जाए। अच्छा हमारे साथ शकील भाई भी मौजूद है और उनसे ये हम हमारी टीम का हिस्सा है। और इनको गिफ्ट दे दे आप। ये बेटा ये गिफ्ट उठाए आप, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ। सबसे बड़ी बात है कि ये पाँव पे तकलीफ है लेकिन आ जाए। अच्छा और हमारे साथ बड़ी प्यारी सी बच्ची है भाई, मुझे तो उसका स्कार्फ बहुत पसंद आया है। और एक और बात बताती चलूं भाई, छोटी सी यूट्यूबर है वो अलीशा भी खड़ा है जी। अशरफ अहमद साहब उनको गिफ्ट दे। अच्छा एक और बात, अशरफ अहमद साहब अलीशा बेगम को गिफ्ट दे रहे हैं AWT की तरफ से। अच्छा अब आप दोनों मिलकर को होस्ट रिक्शा जो कि स्मार्ट स्कूल से उनको गिफ्ट दे रहे हैं। चलिए अशरफ अहमद साहब आप भी खड़े हो जाए। इधर इधर जी तो आपने देखा कि अंदाज टीवी की अवतार ट्रांसमिशन विद नाहिद शेख और हमारे जो चेयरमैन हैं कमर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पर हैं अशरफ अहमद साहब पाकिस्तान राय हक पार्टी के वो मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ स्मार्ट स्कूल की बच्चियां हैं, यहाँ पर 4 बच्चियां स्मार्ट स्कूल की हैं क्विज कंपटीशन की और को होस्ट। और हमारे साथ जो है स्कूल स्टैंडवुड पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर। और इन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि बिल्कुल तारीख का वक्त करीब तरीन है। अल्लाह ताला एक तो मैं ही खुद दुआ करवा लेती हूँ। प्लीज़ यहाँ पर आप प्लीज़ अब सरों पर दुपट्टे गए हैं बड़ा से। ए अल्लाह ये रात इस अशरे के जाते जाते हम सब के घरों में अपनी खास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन ये अंदाज टीवी की जो ट्रांसमिशन है, ये अंदाज टीवी का जो सेट है और अंदाज टीवी पे जितने भी हमारे टीम हैं और हमारे चेयरमैन हैं और उसकी जो होस्ट है उन सब के घरों में अपनी खास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। और इस रमज़ान की बरकत से जो है अंदाज टीवी को जो है कामयाबियों की बुलंदियाँ अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन ये आज अशरा ख़त्म हो जाएगा और हम दूसरे अशरे की तरफ यानी कि मग़फ़िरत के अशरे की तरफ पहुँच जाएंगे और इस तरह करते करते ये रमज़ान हमसे रुखसत हो जाएगा। या रब्बुल आलमीन जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जो यहाँ इस ट्रांसमिशन पे मौजूद हैं और जिसने दुआ के लिए हाथ उठाया है, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा दे। या अल्लाह पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आ खड़ा हुआ है। ए अल्लाह पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आ गया है, दोनों तरफ मुसलमान हैं। या अल्लाह कोई ऐसी तदबीर कर दे, ए अल्लाह कोई ऐसा मौज़ा कर दे कि मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान हैं आपस में मुत्तहिद हो जाएं और दुश्मन की यहूदियों की नसारा की चाल नाकाम हो जाए। हे रब्बुल आलमीन आज हज़रत खदीजतुल कुबरा का मिसाल भी है जो उम्मत की माँ है, जो हज़रत फातिमा ज़ोहरा की माँ है, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शरीक हयात है, जो उनकी साथी भी थी, जो उनकी नबूवत की साथी थी, जो उनकी कारोबारी साथी थी और सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून। ए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। है मेरे रब्बुल करीम हमारे हाथ उठे हुए तेरे आगे। या अल्लाह जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाना। ए अल्लाह दीन की सलामती अता फरमाना। ए अल्लाह हम सबको यहाँ पर दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा। ए अल्लाह हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा और रोज़ाना 60,000 मुसलमानों की जो तू बख्शिश फरमाता है या अल्लाह उसमें हमारा नाम रख दे। ए अल्लाह अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार वअदखिलनी जन्नता या रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह हमें दोज़ख से निजात दे दे और जन्नत में दाखिल फरमाना।
اے اللہ میں دوزخ سے نجات دے دینا اور جنت میں داخل کروانا اور ہمارا حساب اپنے صالحین اور شہداء کے ساتھ کرنا. اے میرے رب العالمین یہ ٹرانسمیشن جو اس میں رمضان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جو مفتی حضرات اس میں آ رہے ہیں اور دین کی باتیں بتا رہے ہیں, جہاں جہاں تک دین کی باتیں پھیل رہی ہیں, اے اللہ مفتی حضرات کی بھی جو ہے ان کی بھی یہ نامہ اعمال میں لکھنا اور انداز ٹی وی کی پوری ٹیم اور چیئرمین کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دینا. اے اللہ آخر میں یہی کہوں گی ہم سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنا دے اور ہم سب کو اگلا رمضان مدینہ میں دکھانا. آمین یا رب العالمین. Andaz TV. Soch Aapki Andaz.